Assalamu alaikum. In today's lecture, we will be talking about the main points that are there in the book Culture and Imperialism. So, before moving ahead, I would like to make it clear that as far as your syllabus is concerned, only the introduction to culture and imperialism is incorporated there. The whole book is not included in your syllabus, so that's why we will be focusing primarily upon this introduction. And there are two things that are very important about the introduction. The first thing is that this introduction is written by Edward Said himself, and the second thing is that this introduction provides us the summary or the main ideas, summary of the main ideas that are discussed in the culture and imperialism. So after reading this introduction, we can find ourselves to be in a position to understand or to read and then understand culture and imperialism in a holistic manner. So this book is written by Edward Said. So when the name Edward Said comes in our mind, this must accompany two other names. These names are Gayatri Spivak and Homi K. Bhabha. These three writers, these three theorists, Edward Said, Homi K. Bhabha and Gayatri Spivak, they are very important in the post-colonial theory, and they are sometimes called Trinity in the post-colonial theory. So that's why they are very important. I have written some of the quotation, mentioned some of the quotations and some of the notes. These quotations will be very important for the better understanding of culture and imperialism. So we will be touching upon them later. So first of all, we would see that this is written by Edward Said. So who is Edward Said? I would not go into a detailed biography of Edward Said, but we will just be focusing upon those things which are relevant to us. So as far as Edward Said is concerned, he was a professor of comparative literature. He was born in Jerusalem, that is called Jerusalem in Urdu, and then he shifted to USA. He was a professor of comparative literature. We know this thing very well, that comparative literature is a very important field of literature, and reading, you can say, our acquaintance with the comparative literature, it, you can say, enables us to develop our more and more insights about literature, about you can say the different approaches to study literature and all these things. So you can say that as far as he was concerned, he was the professor of comparative literature, and this comparative literature, it helped him to develop his insights that are given in this book and his book Orientalism. So that is how you can say he is very important. And there is another thing that we need to keep in mind, that the criticism before Edward Said, it is called pre-Saidian criticism, and the criticism that is after him, it is called post-Saidian criticism. So you can say that how important you can say Edward Said in the domain of criticism, that before him उससे पहले जो criticism थी वो और तरह की थी, और उसके बाद की criticism वो और तरह की थी. It means that he must have introduced some of the radical ideas, some of the radical methods in his criticism. ठीक है, अब इस हवाले से हम देखते हैं कि कैसे ये, जब हम इसको पढ़ेंगे व्हेन वी रीड दिस टेक्स्ट, तो हमें ये बखूबी बात पता चलेगी. अब इसके आगे पढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. आमतौर पे समझा जाता है कि जो लिटरेचर होता है, जो अदब होता है, ठीक है, लिटरेचर इज़ मेंट टू इम्पार्ट एस्थेटिक प्लेयर, कि अदब का सिर्फ मकसद क्या होता है लिटरेचर का, क्योंकि लिटरेचर एक आर्ट फॉर्म होता है, ठीक है, जैसे कि म्यूज़िक है, जैसे कि पेंटिंग है, ठीक है. तो वो कहते हैं कि ये स्कूल ऑफ थाट जो है ये बिलीव करता है कि लिटरेचर का मकसद सिर्फ हमारी एस्थेटिक सेंस को अपील करना होता है, हमारी हिस्से जमालियात को अपील करना होता है, इसका कोई सियासत से, कोई लाइफ के साथ कोई लिंक नहीं होता, ठीक है. ये पहला स्कूल ऑफ थाट है. दूसरा स्कूल ऑफ थाट ये कहता है कि इट मिरर्स आवर लाइफ, ठीक है, यानी वो पहला स्कूल ऑफ थाट सिर्फ इसको कहता है आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, यानी फ़न बाय फ़न जिसे हम कहते हैं. दूसरा स्कूल ऑफ थाट कहता है कि लिटरेचर को, अदब को हमारी ज़िंदगी की अक्कासी करनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी का मिरर होना चाहिए, ठीक है, हमारी सोशल, हमारी जो
इकोनॉमिक हमारी जो लाइफ होती है ओवरऑल उसके बारे में हमारा जो मिरर होता है वो लिटरेचर होता है। इसीलिए जो होता है ना कि दैट इज़ हाउ वी कैन बी एबल टू इस्टेब्लिश द कनेक्शन बिटवीन लाइफ एंड लिटरेचर। आमतौर पे कहा जाता है कि जो लाइफ होती है वो लिटरेचर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती है, कि जहाँ ज़िंदगी को होगी वहाँ लिटरेचर होगा, जहाँ लिटरेचर होगा वहाँ लाइफ होगी। तो ये दूसरा स्कूल ऑफ थाट ही कहता है। तीसरा स्कूल ऑफ थाट जो होता है वो कहता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, आमतौर पे हमारे माशरे में आमतौर पे ऐसा था, अभी भी ऐसा किसी हद तक हो सकता है, लेकिन आमतौर पे ऐसा समझा जाता था कि लिटरेचर जो होता है, जो आर्ट होता है, कि उसको इट हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। लिटरेचर इज़ एन ए पोलिटिकल डिस्कोर्स, इट हैज़ नथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। ओके, लेकिन जब हम एडवर्ड सईद को या खास तौर पे पोस्ट कॉलोनियल हम थियरिस्ट को पढ़ते हैं तो हमें ये बात खुल के हमारे सामने ये बात वाज़ह हो जाती है कि जो लिटरेचर और पॉलिटिक्स होते हैं दे आर इंटरलिंक्ड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अदब का लिटरेचर का इसके साथ लिंक नहीं है। ठीक है, ख़ास तौर पे देखें कि जब चूँकि हम इंपीरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि जो कॉलोनीज़ थी, जितनी भी कॉलोनीज़ थी, जैसे अगर अफ्रीका की बात की जाए, पाकिस्तान इंडिया की बात की जाए, बाकी ममालिक की बात की जाए, तो वहाँ जो इंग्लिश लिटरेचर था, इंग्लिश लिटरेचर को बतौर कैनन इस्तेमाल किया गया। कैनन का मतलब ये होता है कि कुछ सर्टन किस्म की जो राइटिंग्स थी, शेक्सपियर है, मिल्टन है, चौसर या वेस्टर्न आथर्स की जितनी राइटिंग्स थी, उनको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, एक मेयार बना दिया गया, और उस मेयार के तौर पे लोगों को पढ़ाया गया ताकि लोगों में एक अंग्रेज़ियत पैदा हो। देखिए, एक होता है अंग्रेज़ी अदब पढ़ना, एक होता है अंग्रेज़ियत हासिल करना, इंग्लिश नेस्ट जो होता है ना अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो यहाँ हमें ये चीज़ नज़र आती है। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें यहाँ भी नज़र आएगी, तो अगर अफ्रीका के कॉन्टेक्स्ट में देखें वहाँ भी आएगी। जैसे कि एक ऐसे है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है अपने 6th सेमेस्टर के अंदर, द एबोलिशन ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट, जिसमें गुगी व थियांगो इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करता है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट जो है वो एक कॉलोनियल एंटरप्राइज की एक एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि लिटरेचर जो होता है वो पॉलिटिकल होता है, लिटरेचर को हम नॉन ए पॉलिटिकल कभी भी नहीं कह सकते। ठीक है, एक ये चीज़ होगी। अब हम देखते हैं कि एडवर्ड सईद की जहाँ तक बात है, अब एडवर्ड सईद ने ये किताब लिखी। ठीक है, इस किताब का नाम है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि एज़ फार एज योर कोर्स इज़ कंसर्न्ड, यहाँ सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन, उसका तारुफ शामिल किया गया हुआ है। अब इसमें तारुफ में दो चीज़ें देखते हैं, इसमें एक लफ्ज़ है कल्चर और एक एम्पीरियलिज्म। ठीक है, आप सबसे पहले हम दूसरे लफ्ज़ के ऊपर जाते हैं। ठीक है, फिर हम कल्चर को भी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे एडवर्ड सईद ने बजाते खुद कल्चर को क्या समझा हुआ है, यानी कल्चर का जो आम माना लिया जाता है हमारे माशरे में, क्या वही माना है या एडवर्ड सईद ने किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर कल्चर का मीनिंग इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इंपीरियलिज्म क्या, इंपीरियलिज्म के उर्दू में लफ्ज़ यूज़ करते हैं इस्तेमार यूज़ करते हैं, या इसके लिए साम्राज्य भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, साम्राज्यत या इस्तेमारियत, ठीक है, ये दोनों हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब ये साम्राज्य या इस्तेमार का मतलब क्या होता है, ये डेफिनेशन है, मैंने मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी से अभी मैंने डेफिनेशन देख के तो मैंने यहाँ ये लिख दी है, एज इट इज़ लिख दिया है। ठीक है, तो मुझे ये ज़्यादा जामिया लगे, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लगी है। तो कहते हैं द पॉलिसी, प्रैक्टिस और एडवोकेसी ऑफ एक्सटेंडिंग द पावर एंड डोमिनियन ऑफ अ नेशन स्पेशली बाय अ डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन आर गेनिंग इनडायरेक्ट कंट्रोल। देखिए, इसमें ये डेफिनेशन को जब हम पढ़ते हैं, डीकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हमारे सामने दो चीज़ें आती हैं। ठीक है, एक होती है कि डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्विजिशन आता है, और दूसरा इनडायरेक्ट कंट्रोल आता है। ठीक है, यानी पहले ज़मानों के अगर देखा जाए तो पहले ज़मानों में जो इस्तेमाल था या जो साम्राज्य था या जो इंपीरियलिज्म थे, ठीक है, ये दूसरे ममालिक में जाके उनके ऊपर डायरेक्टली कब्जा करते थे, डायरेक्टली उनको कंट्रोल करते थे। ठीक है, लेकिन जो न्यू इंपीरियलिज्म है, जदीद साम्राज्यत है, जदीद इस्तेमार है, ठीक है, वो ऐसे नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है कि वो अपने मुल्कों में ही बैठे हुए इदारों के ज़रिए, इंस्टीट्यूशन के ज़रिए दूसरे जो कॉलोनीज थी उनके ऊपर वो हुकूमत करते हैं। असल में हुकूमत वही कर रही है, यानी उसकी मिसाल हमें चूँकि पाकिस्तान में हमें ये बात बिल्कुल आसानी से ये समझ आ सकती है। ठीक है, कि यानी किस तरीके के साथ जो होता है कि वो इकनॉमिकली, ठीक है, और पोलिटिकली और इवन कल्चरली हमारे ऊपर कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये इंपीरियलिज्म के एक कंसेप्ट है। ठीक है, अब इस ऐसे के अंदर, इस किताब के अंदर और खास तौर पर इस इंट्रोडक्शन के अंदर एडवर्ड सईद क्या करेगा, एडवर्ड सईद वुड बी एबल टू टॉक अबाउट द लिंक
बिटवीन कल्चर एंड इम्पीरियलिज्म, ठीक है। अब क्योंकि इससे पहले मसला ये था कि जो इम्पीरियलिज्म था उसके कल्चर के साथ नहीं उसे जोड़ा जाता था। अब इम्पीरियलिज्म की डिफरेंट मैनिफेस्टेशन है, जैसे पॉलिटिकल इम्पीरियलिज्म हो सकती है, ठीक है, इकोनॉमिक इम्पीरियलिज्म हो सकती है, और कल्चरल इम्पीरियलिज्म हो सकती है। तो कल्चरल इम्पीरियलिज्म जो है उसके ऊपर यानी ये समझे कि लिखा गया। अब कल्चरल इम्पीरियलिज्म की भी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन होती हैं, खासतौर पर अगर देखें आज के दौर में जो कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन है, खासतौर पर अब हम देखेंगे जो AI है, ठीक है, वो किस तरीके के साथ जो इंपीरियल पावर्स होती हैं वो इस्तेमाल करके अपने मकासद के लिए हम उनको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये इंपीरियलिज्म के कुछ थोड़े से कंसेप्ट है जो हमने बयान किए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे हम इसके टेक्स्ट का चूँकि मुताला करेंगे, हम इसके टेक्स्ट के अंदर से चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो टेक्स्ट के हवाले से अगर देखें तो वो बताता है, एडवर्ड साइड हमें बताता है कि उसने जो था ना कि यानी 1978 में ओरिएंटलिज्म लिखी, और ओरिएंटलिज्म के बाद ये किताब आई। उससे पहले किताब ओरिएंटलिज्म थी। और स्टूडेंट्स, आई वुड डेफिनेटली एनकरेज यू टू acquaint yourself with the key ideas of Orientalism so that you can be in a position to understand culture and imperialism in a better manner, ठीक है। अब ओरिएंटलिज्म के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसका जिक्र करूँगा। देखिए ओरिएंटलिज्म के अंदर दो लफ्ज़ हैं। मेन लफ्ज़ है ओरिएंट, ठीक है। अब ओरिएंटलिज्म क्या चीज़ होती है कि इसमें इसको समझने से पहले हमें जो था ना मिशेल फूको का जो थेरी है, डिस्कोर्स की थेरी है, या पावर नॉलेज नेक्सस की थेरी है, ठीक है, उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि एक्चुअली वाई इज़ इट नेसेसरी, इट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट Edward Said he took the insights of Michel Foucault and then he applied those insights to the study of post-colonial you can say literature, ठीक है। अब यानी पोस्ट कलोनियल जो लिटरेचर है उसे हम मिशेल फूको के इंसाइट के साथ हम पढ़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ओरिएंटलिज्म क्या चीज़ है। ओरिएंट इसमें दो लफ्ज़, एक होता है ओरिएंट, ठीक है, एक होता है ऑक्सीडेंट, ठीक है। अब देखें कि जहाँ जहाँ जो गोरे जहाँ जहाँ ये लोग गए, ठीक है, यानी विच एवर कंट्री दे वेंट, ठीक है, जहाँ जहाँ गए तो ये सिर्फ आर्मी लेके नहीं गए, ठीक है, बल्कि वहाँ स्कॉलर्स को भी लेके गए। ये कहा जाता है कि ये जब नेपोलियन बोनापार्ट ने जब मिस्र को फतह किया था, ठीक है, तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा लोग यानी पढ़े लिखे स्कॉलर्स भी थे। वो स्कॉलर्स क्या करते थे, स्कॉलर्स जो थे वो उस मुल्क के कल्चर को, उसकी रवायात को, उसकी तहजीब को, उसकी सोसाइटी को, उसकी तारीख को, उसको पढ़ते थे और पढ़ के उसके ऊपर लिखते थे, ठीक है। ऐसे ही जैसे देखें कि मिस्र के बारे में लिखा जिसे इजिप्टोलॉजी कहा जाता है, इस तरह इंडिया के बारे में लिखा इंडियनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। यानी ये वो किताबें थी जो कोलोनाइज़र के जो लोग थे, जो कोलोनाइज़र के स्कॉलर्स थे, कोलोनाइजर्स थे, उन्होंने लिखी, उन्होंने ईस्ट के बारे। यानी आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि वेस्ट के स्कॉलर्स ने ईस्ट के कल्चर, ईस्ट की हिस्ट्री, ईस्ट की सोसाइटी, ईस्ट की रस्म रवायात के मतलब जो लिखा उसको हम ओरिएंटलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब ओरिएंटलिज्म जो किताब है ये एडवर्ड साइड ने लिखा। तो एडवर्ड साइड ने वहाँ ये बताने की कोशिश की है, ठीक है, कि जो ईस्ट के लोग होते हैं ना, जो नॉन वेस्टर्न लोग, जो ईस्टर्न लोग हैं, ठीक है, असल में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो गलत की गई है। यानी वो ऐसे है नहीं जैसे उनको रिप्रेजेंट किया गया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ओरिएंटल डिस्कोर्स के अंदर हमें जो यानी ईस्टर्न नज़र आते हैं, जो ईस्ट के लोग नज़र आते हैं, ठीक है, वो हमें बैकवर्ड नज़र आते हैं, हमें जो तना के गमवाद नज़र आते हैं, हमें जाहिल नज़र आते हैं, हमें अनसिविलाइज अनकल्चर नज़र आते हैं। अब ज़ाहिर है ये एक डिस्कोर्स है, इसे कहते हैं ओरिएंटल डिस्कोर्स। तो अब ओरिएंटल डिस्कोर्स के हवाले से अगर देखें कि जब ये एक इल्म है, एक इल्म वजूद में आया इस तरह, ठीक है। अब इस इल्म की बुनियाद इतनी अहम होती है क्योंकि इस इल्म की बुनियाद के ऊपर आगे जो पॉलिसीज बनती हैं, जो आगे जो पॉलिटिकल फैसले होते हैं, सियासी जो फैसले, तो इन डिस्कोर्स की बुनियाद के ऊपर होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप ये डिस्कोर्स पहले बना रहे, ठीक है, कि फ़ला इलाके के लोग जो थे ना वो अनपढ़ हैं, वो जाहिल है, उनको यानी अपनी ज़िंदगी गुजारने के अच्छे तरीके नहीं आते, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम जाएं और हम जाके क्या करें, उनको ये तरीके भी सिखाएं, उनको सिविलाइज भी करें, उनको हम इनलाइटन भी करें। तो ये सारे का सारा ओरिएंटल डिस्कोर्स है, ठीक है। तो इसी को जो था ना एडवर्ड साइड ने जब ओरिएंटलिज्म लिखा तो ओरिएंटलिज्म उसने ये बताया कि जिस तरीके के साथ द वे दैट द ईस्टर्न्स ऑफ द ओरिएंट हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय द वेस्टर्न स्कॉलर्स, ठीक है, ये मिस रिप्रेजेंट किया गया हुआ है उनको, यानी वो ऐसे नहीं है कि जैसे इनको किया गया हुआ है। जैसे मिसाल के तौर पे अब हम लोग हैं,
पाकिस्तान में रहते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को हम लोग खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोई मगरिब से बंदा आए, मगरिब से स्कॉलर हो, हमारी रिप्रेजेंटेशन करे। वो करेगा तो हमारी रिप्रेजेंटेशन वो गलत करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, अब वो ये एडवर्ड सईद के बताता है, ठीक है, कि जो होता है ना कि एज फार एज कल्चर एंड इंपीरियलिज्म इज कंसर्न, ठीक है। उसने ये किताब लिखी और ये किताब से पहले ओरिएंटलिज्म लिखी, ओरिएंटलिज्म 1978 में उसने पब्लिश की, ठीक है। अब उसने जो था ना कि जहाँ तक ये किताब है, एज फार एज कल्चर एंड इंपीरियलिज्म इज कंसर्न, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ डिफरेंट लेक्चर्स दैट ही डिलीवर्ड एट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज इन यूनाइटेड स्टेट्स, इंग्लैंड, कैनेडा, ठीक है। ये उसके कंपाइल्ड समझे कि ऐसे हैं, उसके जो लेक्चर्स के ऊपर मबनी है। दूसरी बात हो गई। तीसरी चीज़ ये देखें कि अब अगर ओरिएंटलिज्म उसने लिख ली थी, ओरिएंटलिज्म, ठीक है, तो फिर उससे वाई डिड ही नीड टू राइट कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। जब एक मतलब इतना लैंडमार्क वर्क जो था पहले उसने लिख लिया है, ठीक है, तो असल में उसका मकसद ये बताता है, वो ये बताता है कि यानी वाई डिड ही हैव टू राइट culture and imperialism. It is because of the fact that Orientalism, as far as this was concerned, this was limited in scope to Middle East. यानी ये सिर्फ मशरिक़ वस्ता जो था, मिडल ईस्ट, ये वहाँ तक इसका महदूद था, ओके। ये यानी और जो थी कॉलोनीज वगैरह थी उनके बारे में ये बात नहीं करती थी। और दैट्स वाई कल्चर एंड इंपीरियलिज्म के अंदर क्या किया जाएगा कि उसके अंदर इसके बारे में भी बात की जाएगी। तो अभी तक हमने ये चीज़ें देखी कि ओरिएंटलिज्म और इसके लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद अब देखिए मकसद क्या था। अब देखिए पर्पस भी तो होता है ना जब हम कोई किताब लिखते हैं। जैसे उसने ओरिएंटलिज्म लिखी तो ओरिएंटलिज्म का मकसद क्या था कि यानी वो जो मिस रिप्रेजेंटेशन जो कि जो यानी मगरबी लोगों ने मशरक़ी लोगों को की हुई है उसको हाईलाइट करना कि यानी इनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होगा, ठीक है। इसका पर्पस ये होगा कि नाउ ही सेइंग दैट he has set out, he has embarked upon a journey in order to establish the रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। कि कल्चर और इंपीरियलिज्म जो होता है, जिस सकाफत होती है, जो साम्राज्य होता है, उसके दरमियान रिलेशन क्या है, यानी कल्चरल इंपीरियलिज्म की जो डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं उसके बारे में वो बात करेगा इस किताब के अंदर। तो ये बात होगी। अच्छा, अब इसके बारे में देखें, वो ये बताता है कि यानी इस किताब को ना लिखने के लिए, ठीक है, कल्चर इंपीरियलिज्म को लिखने के लिए उसने जो मगरबी राइटर थे, जो यूरोपियन राइटिंग थी, उसको देखा। और यूरोपियन राइटिंग में एक उसे चीज़ नज़र आई, ठीक है, कि यूरोपियन राइटिंग जो थी, चूँकि व्हेन यूरोपियन वर रिप्रेजेंटिंग द ईस्ट ऑल द अदर कंट्रीज, तो देयर राइटिंग वर बाइस्ड, देयर व्यूज़ वर बाइस्ड, दे वर प्रेजुडिस्ड, ठीक है। अब वो कैसे थे, ठीक है, यानी उसमें जो ईस्ट के लोग थे उनको, या दूसरे अफ्रीका के लोग थे या दूसरे ममालिक के लोग थे, उनको मिस रिप्रेजेंट किया गया था, यानी उनको ऐसे पेश किया गया था जैसे कि वो नहीं थे। दे वर प्रेजेंटेड एज बारबेरिक, एज अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड, अनइनलाइटेंड एंड अनएजुकेटेड, ठीक है। तो ज़ाहिर है अगर कोई अनएजुकेटेड होगा, ठीक है, अनइनलाइटेंड होगा, तो फिर जो लोग इनलाइटेंड होंगे उनका फ़र्ज़ है कि वो उस मुल्क में जाएं और जाके उनको इनलाइटेंड करें, उनको एजुकेट करें, ठीक है। ये तो उनका फ़र्ज़ होगा ना, ठीक है। इसका मतलब यहाँ ये पता चला कि डिस्कोर्स अबाउट द कोलोनाइज्ड, ठीक है। देखिए जो मैंने पिछले लेक्चर हार्ट ऑफ डार्कनेस में भी ये बात बयान की थी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि जो होता है ना कि द वायलेंस, द फिजिकल वायलेंस दैट वाज परपेट्रेटेड बाय द कोलोनाइजर ऑन द कोलोनाइज्ड, ठीक है, इट वाज अकम्पनीड बाय द डिस्कोर्स अबाउट द कोलोनाइज्ड। वो डिस्कोर्स क्या था, ठीक है, कि उसमें इनको मिस रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। मिस रिप्रेजेंट करके उनके बारे में फिर पॉलिसीज वगैरह बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये इस में बात उसने की है, ठीक है। जो हाईलाइटेड मैंने टेक्स्ट की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लाजमी देखें, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे कहते हैं कि कहते हैं कि मैंने ओरिएंटलिज्म जो था ना, अब ओरिएंटलिज्म के अंदर क्या किया था, कहते हैं व्हाट आई लेफ्ट आउट ओरिएंटलिज्म वाज दैट द रिस्पॉन्स टू वेस्टर्न डोमिनेंस, ठीक है। अब इसमें डीकोलोनाइजेशन की बात नहीं की थी। अब डीकोलोनाइजेशन में वो देखते हैं, वो कहता है कि जब डीकोलोनाइजेशन में जो था ना डिफरेंट किस्म की रेसिस्टेंस हुई, वो आर्म भी थी और कल्चरल भी थी, ठीक है, कल्चरल भी थी और आर्म भी थी, ठीक है। यानी असले के साथ भी की गई, उस सकाफत के साथ भी की। सकाफत का मतलब क्या होता है कि वहाँ एक अपनी आइडेंटिटी के साथ भी जो होता है ना एक यानी मुहिम चलाई गई, आज़ादी की मूवमेंट चली, डीकोलोनाइजेशन की बाकायदा मूवमेंट चली। जैसे अगर हम अपने कंट्री की बात करें, बाकी कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ भी जो है कल्चरल एस्पेक्ट आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आएगा, ठीक है। तो वो कहता है इसके अंदर मैं ये बात को डिस्कस करूँ। अब कहते हैं इसकी थीम क्या है, यानी इसके अंदर जो होता है ना क्या चीज़ है, कहते हैं दीज टू फैक्टर्स अ जनरल वर्ल्ड वाइड पैटर्न ऑफ इंपीरियल
कल्चर एंड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पायर। ठीक है, वो कहता है ये थीम है। ठीक है, यानी दिस इज़ द थीम ऑफ कल्चर एंड एम्पीरियल, इसके अंदर ये बारे में बात होगी। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं कल्चर की बात है, क्योंकि ऊपर हमने इंपीरियलिज्म को डिस्कस कर लिया है, अब हम देखेंगे कि कल्चर से क्या मुराद है। ठीक है, और कल्चर से मुराद हम वो लेंगे जो कि एडवर्ड सईद ने बजाते खुद कल्चर के बारे में बताया है। ठीक है, अब एडवर्ड सईद बताता है कि इन बोथ बुक्स आई हैव एम्फेसाइज्ड व्हाट इन जनरल इन रादर जनरल वे आई हैव कॉल्ड कल्चर। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ओरिएंटलिज्म है और कल्चर एंड इंपीरियलिज्म दोनों के दरमियान एक जो सिमिलैरिटी हमें नजर आएगी वो कल्चर के पॉइंट के ऊपर एम्फेसिस नजर आएगा। ठीक है, अब कल्चर के क्या होता है, कहते हैं एज आई यूज द वर्ड कल्चर इन टू थिंग्स इन पर्टिकुलर। ठीक है, अब देखें जब अब हम ये बात हमें समझ आ जाएगी कि कल्चर का जो मीनिंग है दो उसके यानी एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके दो मीन्स हैं। जब कल्चर का लफ्ज़ उसके जहन में आया तो कल्चर के लिहाज से दो लफ्ज़ आते हैं। ठीक है, ठीक है, एक कल्चर का मीनिंग कहता है कि ये लिखा इट मीन्स ऑल दोज प्रैक्टिसेस लाइक द आर्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन कम्युनिकेशन एंड रिप्रेजेंटेशन दैट हैव रिलेटिव ऑटोनॉमी फ्रॉम द इकोनॉमिक सोशल पोलिटिकल रेलम्स। अच्छा देखें, ये सारे जो डेफिनेशन मैंने हाईलाइट की है उसमें वो जो होता है ना कल्चर के बारे में सिर्फ ये बताता है कि कल्चर से क्या मुराद होता है। कल्चर से मुराद हमारी जो लाइफ होती है, हमारी आर्ट्स होती है, हमारा अदब होता है, हमारी ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये कल्चर कहलाते हैं। एक कल्चर का आमतौर पर ये मीनिंग लिया जाता है। ठीक है, कल्चर का। ठीक है, उसमें हमारी सारी ये चीज़ें शामिल। अब इसके बाद दूसरा प्रॉब्लम आता है, कहते हैं दूसरी बात क्या होती है, कहते हैं लेकिन कल्चर का और भी एक मीनिंग होता है। ठीक है, तो कहता है जहाँ तक मिसाल के तौर पर नावल की अगर हम बात करें, अब नावल भी चूँकि एक कल्चरल फॉर्म होती है। ठीक है, अब कहते हैं कि एडवर्ड सईद ये बताता है कि जो नावल था, ठीक है, ये दूसरे भी जानराज हो सकते लेकिन उसने पर्टिकुलर नावल को फोकस किया है। ठीक है, कहते हैं नावल की अब तक जो क्रिटिसिज्म की जाती थी ना, तो नावल के सिर्फ और सिर्फ जो थे ना उसके जो फार्मलिस्टिक एस्पेक्ट्स होते थे कि उसका नैरेटिव कैसा है, उसका प्लॉट कैसा है, उसके थीमेटिक कंसर्न्स कैसे, उसकी इमेजरी कैसे, लैंग्वेज कैसी है, उसके ऊपर फोकस किया जाता था। लेकिन नावल्स के अंदर, नावल के मतलब अदब के अंदर, लिटरेचर के अंदर जो छुपी हुई पॉलिटिक्स थी, जो छुपी हुई जो सियासत थी, ठीक है, उसके बारे में बात नहीं की जाती थी। तो इसीलिए हमने ऊपर ये बात की कि प्री यू कैन से सईदियन क्रिटिसिज्म के अंदर क्या था कि यानी लिटरेचर के अंदर जो छुपी हुई पॉलिटिक्स है उसको नहीं बात की जाती थी, यानी इट वाज नॉट ब्रॉट टू द फोर फ्रंट। ठीक है, लेकिन एडवर्ड सईद ने जो था ना कि व्हाट ही डिड वाज दैट ही ट्राइड टू ब्रिंग दी अंडरलाइंग पॉलिटिक्स इन द लिटरेरी वर्क्स टू द फोर फ्रंट, यानी उसने मंजर आम पर लाई। ठीक है, इस लिहाज से उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बन जाती है। अब आगे चलते हैं, आगे देखें, आगे दूसरा उसके जो एस्पेक्ट है कल्चर का, दूसरे एस्पेक्ट में ये आता है, कहते हैं सेकंड क्या है कि यानी एंड almost imperceptibly culture is a concept in the includes a refining or elevating element। अच्छा देखिए, मैथ्यू आर्नल्ड की अगर हम बात करें, आपने मैथ्यू आर्नल्ड के बारे में पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि मैथ्यू आर्नल्ड एक विक्टोरियन क्रिटिक था। ही वाज आल्सो अ पोइट एंड ही वाज आल्सो अ क्रिटिक। ठीक है, वो ये कहता है, मैथ्यू आर्नल्ड का मकसद ये है, वो कहता है क्योंकि जब मैथ्यू आर्नल्ड के वक्त के अंदर जो मोरालिटी थी इट वाज यू कैन से कमिंग डाउन, और उसने ये सोचा कि जो अब हमें लोगों को कल्चर्ड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यानी एक ऐसी फोर्स होती है कि जो कि लोगों को बचा सकती है। वो क्या बचा सकती है, वो कल्चर होता है। तो मैथ्यू आर्नल्ड के मुताबिक कल्चर जो होता है एक एलिवेटिंग फोर्स है। ठीक है, एक एलिवेटिंग एलिमेंट रखता है, एक रिफाइनिंग एलिमेंट रखता है। तो यानी मैथ्यू आर्नल्ड का ये मानना था कि हमने अगर लोगों को अंग्रेज़ जेंटलमैन बनाना है, अगर अंग्रेज़ यानी इंग्लिश जेंटलमैन बनाना है, तो हमें उसको शेक्सपियर और आला किस्म के जो टेक्स्ट होते हैं वो पढ़ाई जानी चाहिए ताकि उनको अंग्रेज़ी वैल्यूज़ का पता चले। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाली बात में क्या था कि ऊपर वाले में उसने बात की कल्चर के बारे में। ठीक है, तो अब यहाँ जो सेकंड बात है, यहाँ कल्चर जो था ना इट हैज़ कम टू बी एसोसिएटेड विद आइडेंटिटी। ठीक है, इट हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, जब देखें मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमें लोगों को पंजाबी पढ़ानी चाहिए, हमें लोगों को उर्दू पढ़ानी चाहिए, हमें सिंधी पढ़ानी चाहिए, हम बलोची पढ़ानी चाहिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन सिंधी पंजाबी और उसके अंदर जो अदब प्रोड्यूस हुआ है वो सारे का सारा क्या है, वो दरअसल हमारी आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है, आइडेंटिटी को शो कर रहा होता है। तो यहाँ मैथ्यू आर्नल्ड का ये मौक़िफ़ था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट होगा, पहला पॉइंट आपने देखा कल्चर के बारे में उसने क्या बताया कि जितनी फाइन आर्ट्स वगैरह सारी होती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी आपने देखा तो दूसरे में क्या होता है कि कल्चर के अंदर आपने देखा कि यहाँ एक आइडेंटिटी का एक यानी सोर्स बन जाता है, सोर्स ऑफ आइडेंटिटी बन जाता है, एक सेंस ऑफ द सोर्स ऑफ आइडेंटिटी कल्चर है। ठीक है, अब आगे की बात देखें कि आगे पॉलिटिकली देखें। ठीक है, तो पॉलिटिकली लिहाज से देखें कि वो कहते हैं कि
कल्चर जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ उसने यानी ये की है, ठीक है। वो कहते हैं जो कल्चर होता है, कल्चर का और पॉलिटिक्स का भी आपस में लिंक होता है, ठीक है। वो कहते हैं कल्चर क्या कहते हैं, इन द सेकंड सेंस कल्चर इज अ सॉर्ट ऑफ थिएटर वेयर वेरियस पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल काजेज एंगेज वन अनदर। अच्छा देखिए, यहाँ बहुत अच्छी बात की है उसने, ये सारे समझो कि इसकी आर्ग्यूमेंट है। वो कहते हैं जो कल्चर होता है, कल्चर सियासत से पॉलिटिक्स से आज़ाद नहीं होता, ठीक है। यानी कल्चर एंड पॉलिटिक्स, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म दे आर इंटरट्वाइन, ठीक है। यानी उनका आपस में इतना ज़्यादा लिंक होता है कि हम उसको अलहदा नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्यों नहीं कहते हैं कि जो कल्चर होता है, कल्चर असल में एक थिएटर पोलिटिकल स्पेस है, एक थिएट्रिकल स्पेस होती है, जैसे थिएटर होता है ना, तो कहते हैं कल्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज आपको वर्क करती नजर आती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम पाकिस्तान की बात करें, दुनिया की बात करें, तो ये दुनिया के कल्चर है ना, ठीक है। अब एक कल्चर के अंदर आपको यहाँ लिबरलिज्म नजर आएगी, न्यू लिबरलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फैशिज्म है, एक एग्जिस्टेंशियलिज्म है, एब्सर्डिज्म है। तो आपको नजर आएगा कि कल्चर जो है, कल्चर इन यानी तो ये सारी अपनी आइडेंटिटी रखती हैं, ठीक है ना। तो यानी इनसे मुबर्रा नहीं हो सकता कल्चर जो है, ठीक है। तो कल्चर क्या होता है कि एक पॉलिटिकल स्पेस होता है, कल्चर एक थिएट्रिकल स्पेस होता है, ठीक है, जिसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज आपस में कॉन्टेस्ट कर रही होती हैं, ठीक है। ये बात है। अब आगे एक बड़ी अहम उसने बात की है, आगे हम देखते हैं। अब देखें क्या कहते हैं कि जो आगे चलते हैं, ये आता है, ये देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझे कि इसकी एक कोर है इसकी आर्गूमेंट की, ठीक है। वो कहते हैं कल्चर कंसीव्ड इन दिस वे कैन बिकम अ प्रोटेक्टिव एंड लॉयल, ठीक है। चेक योर पॉलिटिक्स एट द डोर बिफोर यू एंटर। कहते हैं आमतौर पे समझा जाता है, अमूमन ये समझा जाता है हमारे माशरे में कि जो कल्चर है, कल्चर क्या चीज़ है, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव एंड लॉयल है। प्रोटेक्टिव एंड लॉयल का मतलब क्या होता है कि कल्चर जो होता है इसका सियासत के साथ, पॉलिटिक्स के साथ कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। देखिए इसने ये बात भी बयान की है कि अगर आप कल्चर की बिल्डिंग में दाखिल होना चाहते हैं, यानी इफ़ यू वांट टू एंटर द बिल्डिंग और द एडिफिस ऑफ कल्चर, तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको जो सियासत है, आपको जो ये इसके जो सियासत वगैरह के जूते उतार के इस बिल्डिंग में अंदर आपको एंटर होना चाहिए, ठीक है। ये आमतौर पे नहीं समझा जाता है, एडवर्ड सईद का ये मौक़िफ़ है कि आमतौर पर, लेकिन कल्चर क्या है, कल्चर एक प्रोटेक्टिव एंड लॉयल नहीं है, ठीक है। कल्चर जो होता है वो सियासत से, पॉलिटिक्स से वो आज़ाद नहीं हो सकता बिल्कुल भी, ठीक है, किसी सूरत में भी आज़ाद नहीं हो सकता, ठीक है। इस हवाले से आगे बात करेगा, ठीक है, क्योंकि आमतौर पे पेपर में जब एक क्वेश्चन आता है ना कि कल्चर है एज अ प्रोटेक्टिव एंड लॉयल, तो कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। तो एक बहुत अहम बात है जो उन्होंने की है, ठीक है। अब आगे कहते हैं कि आगे उसने ये जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं ना, लिटरेरी वर्क्स जो होते हैं, देखिए मैंने पहले बताया कि आमतौर पे समझा जाता है कि जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं उनका सियासत के साथ कोई लिंक नहीं होता, ठीक है, आमतौर पे हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। लेकिन मसला यहाँ ये आता है कि जो लिटरेरी वर्क्स होते हैं उनका भी सियासत के साथ, पॉलिटिक्स के साथ लिंक होता है, ठीक है। अगर हम उनको डीप डाउन हम पढ़ते हैं ना, हम उनका एक गहरे तरीके से एनालिसिस करते हैं, तज्जिया करते हैं, तो हमें उनके अंदर छुपी हुई सियासत हमें नज़र आती है, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ मैंने हेडिंग दी है कि एडमायरेशन बट आल्सो फोकस ऑन इंपीरियल प्रोसेस। अब उसने एक नावल है ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ग्रेट एक्सपेक्टेशन डिकेंस का एक बड़ा शाहकार नावल है, ठीक है। तो कहते हैं ये जो नावल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस नावल के अंदर देखें इसने कुछ राइटर्स की मिसालें थी, हैं ख़ासतौर पे दो राइटर्स की मिसालें वो ज़्यादा देता है। एक चार्ल्स डिकेंस की मिसाल देता है, उसका नावल ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, और दूसरी मिसाल वो देता है इसकी जोसेफ कॉनरेड के नावल नोस्ट्रोमो की, ठीक है। अच्छा, अब वो ये बताता है कि इन नावल्स के अंदर जो होता है, इन नावल्स के अंदर ऑल दो जो होता है ना कि दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स, ओके, ही एक्नॉलेज, ठीक है, ही गिव क्रेडिट, ठीक है, उनको क्रेडिट देता है। लेकिन हमारे इसके बाद मसला क्या है इन नावल के साथ कि इसके अंदर भी पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स कैसे होती है, आप उसकी कहानी आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको इस कहानी का पता है ना, अब इसमें देखिए इसमें एक मैगविच एक कैरेक्टर है, मैगविच ग्रेट एक्सपेक्टेशन के अंदर, वो क्रिमिनल है, वो कैदी है, ठीक है, और वो उसको जो कैदी को ऑस्ट्रेलिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। आप कॉलोनियल हिस्ट्री से अगर वाकिफ है तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो था एक पीनल कॉलोनी के तौर पर बना था, ठीक है। तो उसे वहाँ भेज दिया जाता है, और वहाँ जब भेज दिया जाता है तो जब उसे वापस जब आता है तो उसके लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है, इंग्लैंड के लिए। क्योंकि इंग्लैंड क्या कि इंग्लैंड इज कंसिडर्ड टू बी अ प्लेस ऑफ
फाइन पीपल ऑफ द डिसेंट पीपल, ठीक है, कि अच्छे लोगों की ज़मीन है ना जो इंग्लैंड है, ठीक है, उधर आम लोग तो नहीं आ सकते। तो यहाँ से अब ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो दी अंडरलाइन पॉलिटिक्स दैट वाज एट वर्क इन दिस नावल, यानी वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि चार्ल्स डिकेंस है या जोसेफ कॉनरेड है, यानी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट दे वर वेरी ग्रेट नावलिस्ट, ठीक है, वो भी कॉलोनियलिज्म के असर से बच नहीं सके, यानी उनके नावल्स के अंदर भी हमें पॉलिटिक्स नज़र आती है, ठीक है, उनके नावल्स के अंदर भी हमें जो होता है ना कि एक जो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कि लंदन जो एक आला ज़मीन है और बाकी जो ऑस्ट्रेलिया वो दूसरी वो आला ज़मीन नहीं है, जो कॉलोनीज़ होती है वो आला ज़मीनें नहीं है, तो वो हमें जो होता है ना एक चीज़ की हमें नज़र आती है, ठीक है। तो ये उसने मिसाल दी है, ठीक है, इसमें ये देखें मैंने लिखा कि इंपीरियलिस्ट डायनामिक्स इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो यहाँ जो होता है ना कि जो मैगविच का करैक्टर है इस नावल के अंदर, मैगविच के करैक्टर के ज़रिए हमें ये बताया गया कि दी इंपीरियलिस्ट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है, ये हमें बताया गया। अब इसके बाद दूसरा नावल है, दूसरे के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए कि वो कहता है कि यानी इसमें ग्रेट एक्सपेक्टेशन अंडरलाइंग इंपीरियलिस्टिक स्ट्रैंड्स, ठीक है, बट ग्रेट एक्सपेक्टेशन वाज नॉट रिटन विद एनीथिंग लाइक द कंसर्न फॉर द नेटिव ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। अब देखें वो कहते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखा गया, ठीक है, उसमें मैगविच का जिक्र नजर आता है, लेकिन जो होता है ना कि दिस वाज नॉट रिटन फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द ऑस्ट्रेलियन पीपल, ठीक है, दिस वाज रिटन फ्रॉम द प्योरली फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ द इंग्लिश पीपल। एक इंग्लिश मैन लिख रहा है, तो इंग्लिश मैन जब लिख रहा है, ठीक है, वो ऑल तो सिंपथीज भी कर रहा है, जैसे हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर हम देखते हैं, हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर हमें सिंपथीज मिलती हैं। मार्लो जो है, जो जोसेफ कॉनरेड का कैरेक्टर है, वो यानी जो ब्लैक लोग होते हैं उनके साथ सिंपथीज भी कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ही क्या कर रहा है कि उनके जो उसकी ज़ुबान होती है, उसकी ज़ुबान जो होती है वो उनको यानी बिलिटल कर रही है, ठीक है, बिलिटल करके उनको बता रहा है। तो एक ये चीज़ होगी। अब आगे अगला नावल बड़ा एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो है नोस्ट्रोमो, ठीक है। अब नोस्ट्रोमो एक नावल है, दिस इज रिटन बाय जोसेफ कॉनरेड, जिनका हार्ट ऑफ डार्कनेस हमने पढ़ा है, ठीक है। अब ये नावल में बताता है कि बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी द एम्पायर इज नो लॉन्गर मेयरली अ शैडो प्रेजेंस, ठीक है। अब नोस्ट्रोमो की बात करें, नोस्ट्रोमो में भी आप ये चीज़ नजर आएगी कि नोस्ट्रोमो के अंदर जो आपको कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, खास तौर पे जो एक फिक्शनल यानी एक आइलैंड है या जो मुल्क है, ठीक है, साउथ अमेरिका है जहाँ सेट किया गया हुआ है, तो वहाँ आपको जो था ना कि उनके जो कैरेक्टर्स के जो एटीट्यूड, जो कैरेक्टर्स के अंदर जो मतलब उनकी ज़बान, वो सारी इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी का जो होता है ना रिप्रेजेंट करती है, आपको नज़र आएगी, ठीक है। अब देखें कि इसके अलावा आगे देखते हैं, इसकी आपको कहानी आपको लाजमी पढ़नी चाहिए। आगे देखें रेथोरिक ऑफ न्यू वर्ल्ड आर्डर, ठीक है। अब देखें जो न्यू वर्ल्ड आर्डर की बड़ी ज़्यादा अहमियत है, चूँकि जंग-ए-ज़िंदोम के बाद की अगर हम बात करें, जंग-ए-ज़िंदोम के बाद जब खास तौर पर जब कोल्ड वार हुई, ठीक है, कोल्ड वार एरा के अंदर जब अमेरिका जो था, अमेरिका ने यूएसएसआर को कोलैप्स कर दिया, उसे तोड़ दिया और उसके बाद एक नया वर्ल्ड आर्डर बना, ठीक है। अब ये जो नया वर्ल्ड आर्डर हमें नज़र आ रहा है जब हम नोस्ट्रोमो का मुतालिया करते हैं इस नावल का, तो उसमें भी हमें एक नए वर्ल्ड आर्डर की हमें एक यानी ग्लिम्स नज़र आती है। इसका मतलब है कि ये गोरे जो थे, ये जो अंग्रेज़ मुसन्निफीन थे, ऑल दो दे सिंपैथाइज विद दोज पीपल हु वर कॉलोनाइज्ड, लेकिन जिस तरह उनको डेपिक्ट करते थे ना, तो उनके अंदर भी एक खास किस्म का एक प्रेजुडिस, एक खास किस्म के रेशियल सुपीरियरिटी का एलिमेंट नज़र आता है, ठीक है। इसके लिए आपको इनकी कहानी लाजमी आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो न्यू वर्ल्ड आर्डर के हवाले से हम ऑलरेडी जानते हैं कि किस तरीके के साथ न्यू वर्ल्ड आर्डर हुआ, फिर उसके बाद वार एंड टेरर और ये वो जो भी, फिर हम द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट में आपने देखा कि जो उसमें हमला होता है उसके ऊपर जो 9/11 होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस चार्ट इस यानी टेक्स्ट के अंदर एडवर्ड सईद ने बड़े खूबसूरत तरीके के साथ लिटरेचर के अंदर जो एक छुपी हुई पॉलिटिक्स होते हैं उसको वाज़ह किया कि किस तरीके के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद आप आगे चलते हैं, आगे कोटेशन है जो मैंने बताई हैं एडवर्ड सईद के मतलब। एडवर्ड सईद देखिए, एक होता है कॉन्ट्रापंटल रीडिंग। कॉन्ट्रापंटल रीडिंग का मतलब होता है कि किसी टेक्स्ट को ऐसे पढ़ना जैसे उसके राइटर ने इंटेंट ना किया हो, ठीक है। इन टू रीड अ टेक्स्ट अगेंस्ट द वे इट्स राइटर इंटेंड्स इट टू बी रेड बाय चैलेंजिंग एंड अंडरलाइंग असम्पशंस, ठीक है। यानी जैसे मिसाल हमें जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, अदब हम पढ़ते हैं, तो अदब हम जैसे हमें पढ़ाया जाता है, जब जैसे हम पढ़ते हैं सिर्फ समरीज पढ़ ली, थीम पढ़ ली, ये पढ़ ली, वो पढ़ लिया और उसी को हमने मान लिया, ठीक है। तो वो कहते हैं कॉन्ट्रापंटल रीडिंग का मतलब होता है कि हम एक डिस्कोर्स को जिसको हम इंटरनलाइज कर चुके हो, जिसको हम नॉर्मलाइज कर चुके हों, जिसको हम कॉमन समझते हों, ठीक है, हमें उसके अंदर छुपे हुए अज़ाइम, उसके ऊपर क्वेश्चन उठाने चाहिए, सवालात उठाने चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें ग्रेट एक्सपेक्टेशन की अगर बात की जाए तो एडवर्ड सईद से पहले किसी ने भी किसी भी स्कॉलर ने, किसी क्रिटिक ने इसके ऊपर बात नहीं की थी, ठीक है। तो ये बात है। अब देखें इसके क्रिटिसिज्म है
ये बड़ी खूबसूरत कोटेशन हैं। ये है सईद इज़ अ ब्रिलियंट एंड यूनिक अमेलगम ऑफ स्कॉलर एस्थेट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड इंस्पायरिंग रोल मॉडल। ये बड़ी खूबसूरत कोटेशन है। इसके वाले दूसरी ये जो टोनी मॉरिसन ने दिया, टोनी मॉरिसन का नावल, जैसा कि आप जैज़ उसका नावल पढ़ रहे हैं, तो बताते हैं रीडर कस्टम टू प्रिसिजन एंड एलिगेंस ऑफ एडवर्ड सईड्स एनालिटिकल प्रोज विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाई कल्चर एंड पीरियड। देखिए कल्चर, अब ये एडवर्ड सईद ने खास तौर पर नोम चॉम्स्की की कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड सईद हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हु वी आर एंड व्हाट वी मस्ट डू इफ़ वी एस्पायर टू बी मॉरल एजेंट्स नॉट सर्वेंट्स ऑफ पावर। ठीक है, तो यानी ये उसके मतलब कुछ बातें हैं। तो अब हमने देखा कि इसके अंदर, इस टेक्स्ट के अंदर, वो ही ट्राइज टू ड्रा द कनेक्शन बिटवीन इम्पीरियलिज्म एंड कल्चर। तो कल्चर के बारे में हमने बात की कि कल्चर के उसके दो उसके व्यूज़ हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेन बात यहाँ इस टेक्स्ट के अंदर ये है कि जो कल्चर है वो प्रोटेक्टिव एंड क्लोजर नहीं है। कल्चर जो होता है वो पॉलिटिक्स से आज़ाद नहीं है, बल्कि कल्चर क्या है, एक थिएट्रिकल एक स्पेस है जिसके अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज आपको वर्क करती नज़र आएंगी, कॉन्टेस्ट करती नज़र आपको आएंगी। ठीक है, एक ये चीज़, तो ये बातें बड़ी इस हवाले से भी हम हैं। ठीक है, इस हवाले से आगे देखें कि इसने खास तौर पर इसके जो दो नावल्स हैं, नोस्ट्रोमो है और ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, उसके अंदर जो छुपी हुई अंडरलाइन जो पॉलिटिक्स है, इट हैज़ बीन ब्रॉट टू द फोर फ्रंट बाई एडवर्ड सईद। तो एडवर्ड सईद को इस हवाले से पढ़ना बहुत ज़्यादा अहम है। थैंक यू सो मच।